Yes, Alan. So in yesterday's class, we were studying about communicable diseases. We have studied there are so many different type of communicable diseases are there, which are caused by different type of agents. They may be caused by virus, bacteria, fungi, protozoa, and helminth. Okay? And then we have started one or two examples of each. So सबसे पहले we have done the example of typhoid, which is a bacterial disease which is caused by Salmonella typhi. It is an airborne disease. It is a waterborne disease which also passes from a person to another person through contaminated water or contaminated food. Okay, and the bacteria of this disease is actually infecting small intestine. And symptoms we have studied that the temperature, sustained temperature, which remains somewhere. Sustained temperature which is between 39 to 40 degrees Celsius, and in severe cases we have studied that the perforations are formed. Okay. Then one a classic case we have studied of Mary Mellon, where she was the carrier of disease, how she used to carry the disease from one person to another. Okay. So this is what we have done so far. Today we'll continue the next part of it. Okay. So bacterial disease, two examples are there. One is typhoid and second one is pneumonia. Both are very common diseases. Typhoid is now even it is caused. And pneumonia, even those people who are suffering from corona, they are also getting a sort of pneumonia. So pneumonia is actually a respiratory breathing disorder. Okay. So let us see what it's written. Bacteria like Streptococcus pneumonia and Haemophilus influenzae, they are responsible for this. Now, Haemophilus influenzae is actually a virus. Okay. बैक्टीरिया में दे रखा है एनीवे तो ये इन्फ्लुएंजा कॉज कर रहा है इन्फ्लुएंजा इज आल्सो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यहाँ पे फीवर आएगा और वही वाली प्रॉब्लम और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है ये तो निमोनिया ओरिजिनली कॉज कर रहा है रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज निमोनिया इन ह्यूमन which infects the alveoli that is air sacs of the lungs. ठीक है even present days virus is also that is coronavirus is also affecting alveoli और वो alveoli को ही जो है डैमेज कर देता है ना तो जब भी alveoli डैमेज हो जाएंगे तो क्या होगा द सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स विल डिक्रीज है ना इन दिस केस एक्चुअली दे आर alveoli are damaged, so as a result क्या होगा that surface area will decrease and the oxygen exchange will be reduced drastically and body will not get enough of oxygen. अब जब enough of oxygen नहीं मिलेगी तो क्या है जो lungs के आसपास के एरियाज हैं वहां तो ऑक्सीजन पहुंच जाएगी बिकॉज यहाँ से lungs ऑक्सीजनेटेड एयर लेकर के आसपास निकला है वहां तक तो ऑक्सीजन दे देगा लेकिन by the time it comes to the tip of the fingers, toes, the brain and लिप्स एंड अदर पार्ट्स तो यहाँ तक आते आते ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना so when the oxygen decreases when it is reaching to the distal part because by the time the blood oxygenated blood is traveling all this distance all the oxygen is taken by the tissues on those regions so by the time it comes here the oxygen deficiency will be there in the blood and when the oxygen is deficient in the blood what happens that वो जो tissues that they will not get enough of oxygen. जब tissues are not getting enough of oxygen, then what happens? Then those portions जो है that become blue. तो ये कुछ साइन है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन सीवियर केसेस दीज फार ऑर्गन्स जो होते हैं डिस्टल ऑर्गन जो होते हैं दे टर्न ब्लू तो देखिए एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन द एल्वेलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड तो एल्वेलाई के अंदर क्या एक तरह का फ्लूइड भर जाएगा ठीक है फ्लूइड भर जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन जाने की तो जगह ही नहीं बची है टू सीवियर द प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड फीवर सिम्टम्स देख लीजिए फीवर हो गए चिल्स दैट इज ठंड भी लगेगी कॉफ भी होगा हेडेक भी होगा headache क्यों होगा because oxygen supply is less in the severe cases the lips fingernails are turned bluish in color because the oxygen is not there तो वो deoxygenated blood रहेगा वहाँ deoxygenated blood is bluish in color a healthy person acquire infection by inhaling droplets or aerosols ठीक है तो कोई भी आदमी जिसको निमोनिया हो रहा है उसके आसपास हम बैठ गए वो खांसेगा छींकेगा तो उसके साथ में हवा में एरोसोल्स आ जाएंगे दैट विल कंटेन दिस वायरस और दिस बैक्टीरिया ठीक है एंड virus when I'm talking I'm taking the consideration of corona also because they are also leading to pneumonia
ठीक है। तो वो जो है वो उसके साथ ही आ जाएंगे, रिलीजिंग बाय द इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय शेयरिंग द ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स। अब जिस आदमी ने जिस ग्लास में पानी पिया उसी में अगर हम पी लें, या सम स्पून जिस स्पून से वो खा रहा है उसी से, या उसका झूठा समोसा वगैरह हम खा लें, हो सकता है कि उनसे भी वो जाए। ठीक है, विद द इन्फेक्टेड पर्सन। डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया एक्सेट्रा आर द अदर बैक्टीरियल डिजीजेस। ओके, तो हम इसके बारे में यहाँ पे समराइज कर देते हैं। क्या मैंने आपसे कहा था आपको एक चार्ट बनाना होगा जिसके अंदर आप जो है इन सारी चीजों को लिख लेंगे, तो आपको मालूम रहेगा कि कौन सी डिजीज कैसी होती है एंड ऑल। तो यहाँ पे लिख देते हैं निमोनिया, NEUMONIA। ठीक है, निमोनिया। ये सब कैसे कैसे स्पेलिंग लिखते हैं पता नहीं। तो इट इज पैथोजन क्या है इसका? पैथोजन इज स्ट्रेप्टोकोकस, STREPTOCOC, कोकस निमोनिया, PN। इधर चल जाएगा चार्ट पे, जाने दे क्या फर्क पड़ता है। PNEUMONAE। ठीक है, IAE। और इसके अलावा दूसरा है हीमोफाइलस, HAEMOPHILUS, इन्फ्लुएंजी। ओके, तो यह इटैलिक्स कर देना आप, मेरे पास इसमें यहाँ पे इटैलिक्स में नहीं होगा, ऑप्शन नहीं है, ये हो गए। तो ये तो हो गए पैथोजन। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय contaminated air, aerosol released by infected person। ठीक है, यहाँ से आ जाएंगे इवन बाय शेयरिंग यूटेंसिल्स। तो इन सबसे ये बीमारी आ सकती है। ठीक है, अब सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, चिल्स, ठंड लगना, ठीक है, कॉफ एंड हेडेक। इन सीवियर केसेस, जब बीमारी खतरनाक हो जाएगी, द डिस्टल पार्ट्स या डिस्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी लाइक फिंगर टिप्स, लिप्स, टोज एक्सेट्रा टर्न ब्लू। ठीक है, तो कारण मैंने आपको बता दिया। तो ये जो डिजीज हैं, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड बाय, सॉरी, ये दो एग्जांपल जो हैं वो हमने पढ़े, वो कैसे हो रहे हैं, वो बैक्टीरिया से हो रहे हैं। अदर बैक्टीरियल डिजीज के नाम यहाँ पे लिखे हैं, डिसेंट्री है, प्लेग है, डिप्थीरिया है ना। आपको इसके अलावा भी कई सारी बीमारियों के बारे में पता होगा, टिटनेस है ना, ट्यूबरक्लोसिस है ना। एंड इसके अलावा द मोस्ट ये तो हो गए। रिप्रोडक्टिव डिजीज में भी हमने पढ़े, एसटीडी के अंदर भी सिफिलिस एंड गोनोरिया, दे आर बैक्टीरियल डिजीज। तो इनको आप याद रखिए, कौन कौन सी बीमारियां जो है वो बैक्टीरिया से होती हैं। तो ये आज नहीं तो कल कभी ना कभी आपको जरूरत पड़ सकती है इनको, माना कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अदर बैक्टीरियल डिजीजेस भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और टाइफाइड निमोनिया तो हो गया, टेटनस और ट्यूबरक्लोसिस, देन syphilis, then gonorrhea, then food poisoning,
दैट्स ऑल। काफी टिटनेस ये क्या है, और दोनों रिएक्टिव। तो ये अदर बीमारियां होंगे, है ना। बैक्टीरियल डिजीज जो होते हैं दे आर हार्ड टू ट्रीट। मतलब ऐसा नहीं है कि वो ट्रीटमेंट नहीं होता, कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसका ट्रीटमेंट नहीं होता है ना। यू नो टीबी जो है उसका ट्रीटमेंट चलता है करीब 4 से 5 साल, ठीक है। निमोनिया एंड टाइफाइड और ठीक हो जाएगा आदमी, लेकिन फिर उसको लंबे टाइम तक ही हैज टू बी अंडर ऑब्जर्वेशन, ही हैज टू ऑन सिलेक्टेड डाइट, है ना। तो कारण क्या है कि बिकॉज ये बॉडी को बहुत ज्यादा सीवियरली नुकसान कर देते हैं। तो ये इसका कारण है, एंड द ट्रीटमेंट गोज वेरी लॉन्ग, तो वन हैज टू टेक द कंप्लीट ट्रीटमेंट। ओके। और टेटनस जैसी बीमारी तो बहुत ही खतरनाक है, अब तो खैर सुनने को नहीं मिलती, लेकिन अगर जिस हिसाब से आजकल लोग बाग बिहेव कर रहे हैं वो वापस से आएगी, जल्दी आएगी, ठीक है। आजकल लोग बाग क्या है, वापस से जिस जिस चीज को समझा करके और काफी टाइम से बंद किया था वो चीजें वापस करने लग गया लोग बाग। हर चीज का इलाज अब उनको क्या कहते हैं गाय में दिखने लगा है। तो दैट एक्चुअली यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस थिंग कि जब भी कोई कट लग जाता है बॉडी में तो वी गेट टेटनस इंजेक्शन, है ना। इंजेक्शन हुआ एटीएस एंटी टेटनस सीरम हमको लगा लेना चाहिए। तो एटीएस यूज्ड टू बी गिवन फर्स्ट, लाइक अगर 1 महीने के अंतराल में भी कोई दोबारा किसी को पांच लग गया है, कोई लोहे की चीज लग गई या कोई भी कट लग गया तो दे यूज्ड टू बी गिवन दिस। नाउ इट इज नॉट वेरी कॉमनली गिवन, क्योंकि एक बार हमने इसको लगा लिया तो उसके बाद एंटीबॉडीज बन के बॉडी में पड़े रहते हैं, है ना। नाउ इट इज बीन ऑब्जर्व दैट देयर एंटीबॉडीज रिमेन देयर इन द बॉडी फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम, है ना। It is we have often heard that people saying that that tetanus is caused by the iron item, है ना, लोहे के जंग लगे हुए लोहे से। It has nothing to do with iron. It has nothing to do with iron. Actually, the पुराने टाइम में कट वगैरह उन्हीं से लगते थे, लोहे की चीजें रहती थी, कांच वांच तो इतना ज्यादा था नहीं, है ना। तो वो उससे कट लगता था और बड़ा कट लगता था। But infection used to be caused because of the germs which are present in the soil. और वो germs कहाँ से आया, वो germs actually होते हैं that is जो जो काउ डंग में, दूसरे एनिमल्स के डंग में या किसी और चीज में, सड़ी हुई चीजों के अंदर। और अब आप देख रहे हैं लोग वह क्या वो मलमल के नहा रहे हैं गोबर से, पता नहीं किसने क्या सीख दिया इनको। किसी भी जानवर का एक्सक्रीटा आपके लिए अच्छा तो नहीं हो सकता, ये तो बात क्लियर है। एक्सक्रीटा इज एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा अगर अच्छा होता तो फिर वो जानवर एक्सक्रीट क्यों करता उसको। तो प्लीज डोंट सर्च एनी गुड थिंग इन दोस एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स। एनीवे दैट इज समवन्स आइडियाज, लेट देम गो अहेड विद दोस आइडियाज। आप पढ़े लिखे हैं, प्लीज डोंट यूज दैट। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। वायरल डिजीजेस, कौन कौन सी डिजीज दिया वायरस की। मेनी वायरसेस आर आल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमन, दैट इज द राइनो वायरस रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरस which causes one of the most infectious human ailment, that is common cold, जिसको हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं, ठीक है। ऊपर हमने इन्फ्लुएंजी लिखा है, वहां पे हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी। जो इन्फ्लुएंजा है, जो कॉमन कॉफन कोल्ड है, हमारे यहाँ पे तो इंडियंस तो दे आर वेरी मच अडेप्टेड टू दिस और वेरी मच रेजिस्टेंट टू इट। हमको इतनी कॉमन नहीं होती बीमारी, बट यू विल फाइंड इट इज अ वेरी कॉमन डिजीज इन मोस्ट ऑफ द यूरोपियंस हैव गॉट, ठीक है, इंग्लिश पीपल एंड ऑल। तो उन लोगों को बहुत कॉमनली होती है। इन्फ्लुएंजा हो गया सब, हाँ क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। हमारे यहाँ इन्फ्लुएंजा वगैरह की हम चिंता भी नहीं करते। एनीवे ये ऐसी बीमारी है जो आप ट्रीटमेंट लेंगे तो 1 वीक में ठीक हो जाएंगे, नहीं ट्रीटमेंट लेंगे तो 7 दिन में ठीक हो जाएंगे। मतलब वायरल डिजीज है वो अपने आप आती है, अपने आप जाती है, अनलेस वी गॉट सम अदर एलिमेंट, उसके साथ में कोई दूसरी बीमारी भी अगर है तो फिर ये खतरनाक रूप ले सकती है। अदरवाइज ये आने और जाने वाली बीमारी है। बाय द टाइम बाय 1 वीक्स टाइम आवर बॉडी मेक्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट देम एंड कंट्रोल देम, ठीक है। तो मेनी वायरसेस causes diseases in the human being, उनमें से सबसे कॉमन है राइनो वायरस which represent one such group। ये ग्रुप ऑफ वायरस है ना। कोरोना वायरस वो तो ग्रुप ऑफ वायरस, इट इज नॉट वन पर्टिकुलर वायरस। कोरोना वो सारे वायरस जिनके ऊपर वो कोरोना ऐसे लगे रहते हैं स्पाइक्स, ठीक है, तो वो होते हैं। और कोरोना भी ये इसी कैटेगरी के अंदर आता है, जुकाम मुकाम करने वाला, ठीक है। तो दे इन्फेक्ट द नोज एंड द रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। याद रखिए लंग्स को नहीं अफेक्ट कर रहे हैं, निमोनिया लंग्स को अफेक्ट कर रहा है। रेस्पिरेटरी डिजीज वो भी थे, रेस्पिरेटरी डिजीज ये भी है, पर वो जो है लंग्स को नहीं कर रहा था,
है ना। मतलब ये लंग्स को नहीं कर रहे हैं, वो लंग्स को कर रहा था। कोरोना भी जो है लंग्स को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं कर रहा था। कॉमन कोल्ड इज करेक्टराइज्ड बाय द नेजल कंजेशन, नाक बंद हो जाती है, ठीक है, या फिर उसमें कोई लिक्विड डिस्चार्ज सा रहेगा। सोर थ्रोट, गला जो है भारी भारी सा, आवाज जो है बहुत खराब सी हो जाती है, ठीक है। हॉर्सनेस एंड कॉफ एंड हेडेक एंड टायर्डनेस। हमको सबको साल में कभी न कभी एक बार या 2-3 साल में एक बार ये बीमारी हुई है, तो वी ऑल नो व्हाट इज अ वायरल डिजीज, है ना। एंड वी आर सो अडेप्टेड कि हम ये बीमारी के होते हुए भी अपना रोजमर्रा का काम कर लेते हैं। हार्डली वी टेक लीव, है ना, ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा बहुत जुकाम रहता है, थोड़ा बहुत फीवर, हल्का सा फीवर आ रहा होता है, फीवर इज नॉट रिटन देयर, है ना, फीवर इतना कोई वो नहीं है। थोड़ा बॉडी में पेन सा रहेगा, टायर्डनेस रहेगी, और ये लिखा है इट यूजली लास्ट फॉर 3 to 7 days। दवाई लो तो बढ़िया, ना लो तो बढ़िया। इफ गो टू डॉक्टर डेफिनेटली विल गिव यू मेडिसिन। क्यों देगा मेडिसिन? वो ये कहेगा कि साहब ये आपकी बॉडी वीक हो गई, आपको कोई दूसरी बीमारी नहीं लग जाए, इसके लिए हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं, ठीक है। वायरस के ऊपर एंटीबॉडीज का असर, एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता है। कैन एनीबडी टेल मी व्हाई वायरस आर नॉट अफेक्टेड और नॉट किल्ड बाय एंटीबॉडीज? 9th क्लास में पढ़ा था ये आपने। कुछ है भी कि नहीं पता। इज देयर एनीवन लिसनिंग टू मी? लिखूं क्या मैं? Yes, sir. हाँ, तो बताओ ना फिर। वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक्स का असर क्यों नहीं होता? पेनिसिलिन ले लें, स्ट्रेप्टोमाइसिन ले लें, एमॉक्सिलिन ले लें, है ना, इन बीमारियों, इन दवाइयों का असर क्यों नहीं होता है? देखिए, सिंपल सी बात है कि एंटीबायोटिक्स के काम करने का तरीका क्या होता है। हाउ एंटीबायोटिक वर्क, एंटीबायोटिक जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं किसी न किसी बॉडी के प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। दे आर दोज केमिकल, दोज सब्सटेंसेस विच ब्लॉक्स वन ऑफ द वाइटल एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। कोई सी भी एक या एक से ज्यादा वाइटल एक्टिविटी को रोक देंगे, उसके कारण हम जो है मतलब वो जो पैथोजन है वो मर जाएंगे और उससे फिर हम बच जाएंगे। तो वो वाइटल एक्टिविटी को पैथोजन की रोकना है, हमारी नहीं रोकना है। अच्छा, वायरस की जहां तक बात करते हैं तो वायरस के पास कोई वाइटल एक्टिविटी नहीं है। वायरस सांस नहीं लेता, वायरस वायरस एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता, वायरस खाना नहीं खाता, वायरस डाइजेशन नहीं करता, वायरस कुछ भी नहीं करता। जो 4 लाइफ प्रोसेसेस हमने पढ़े हैं, दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन, ऑल 4 आर एब्सेंट इन वायरस। वायरस डजंट न्यूट्रिश मतलब टेक न्यूट्रिशन, बट वो क्या करता, हमारे बने बनाए न्यूट्रिएंट को यूज कर लेगा फॉर मेकिंग इट्स प्रोटीन एंड आरएनए और डीएनए व्हाटएवर, ठीक है। तो न्यूट्रिशन नहीं हुआ। रेस्पिरेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमारी बॉडी के एटीपी को यूज करेगा। ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है बिकॉज उसके बॉडी के अंदर, बॉडी के आने लायक कुछ भी नहीं है, कुछ एक आरएनए या डीएनए होगा और एक प्रोटीन होगा, ठीक है। तो क्या ही ट्रांसपोर्ट करेगा और कहीं करेगा, ठीक है। और एक्सक्रीशन तो कोई वाइटल एक्टिविटी करी ही नहीं है, व्हेन इट इज नॉट कैरिड आउट एनी मेटाबॉलिज्म, so what excretion he will do? So whatever excretion we are carrying out or whatever metabolism we are carrying out, that is being done in the host cell. So that means if we had to kill virus, we will have to kill the host cell. अगर हम कोई प्रोसेस को ब्लॉक करते हैं तो वो हमारी होस्ट सेल को ब्लॉक कर देगा, वो हमको मारेगा, हम थोड़ी मरना चाहते हैं, ठीक है। ये थोड़ी होगा कि मेरा घर का किराएदार मतलब मकान खाली नहीं कर रहा है तो मैं अपने ही घर को आग लगा लूं, है, ऐसा थोड़ी करते हैं अपन। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ है कि अगर हम वायरस से मतलब बॉडी से खाली करवाना चाहेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने ही सेल्स को मार डालेंगे, हमारी खुद की एक्टिविटी को खत्म कर देंगे। तो दैट इज हाउ द वायरस जो होती हैं, दे रिमेन अनअफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स। जबकि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकता है बिकॉज बैक्टीरिया इज अ सेल in which cell organelle are there. It is carrying out all 4 metabolic process, life processes, that is nutrition, respiration, transport, excretion. If any one or more of these processes are blocked, the bacteria will no more be able to survive. तो हम जो है वायरस को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है ना। बैक्टीरिया को तो कर सकते थे अपन, बैक्टीरियल डिजीज का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इनका नहीं है। तो ये 3 से 7 दिन रहेंगे। बाय द टाइम आवर बॉडी विल मेक सर्टेन सब्सटेंसेस अगेंस्ट देम, ठीक है। हमारे बॉडी को खुद का अपना तरीका पता है कि कैसे उसको रोकना है, तो वो उसको रोक देंगे और वो प्रोसेस उनका खत्म हो जाएगा या फिर उनकी साइकिल खत्म हो जाएगी एंड दे विल डाई, ठीक है। देयर आर सम वायरसेस व्हिच कैन
infect from outside to the cell but body, but they cannot infect from one cell to another cell. तो वो सेल मरी तो उसके साथ में वायरस खत्म। ठीक है, तो वो कुछ कारण हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी साइंस है, नॉट एवरी साइंस इज सेम, नॉट एवरी मैकेनिज्म इज सेम। ठीक है, अब आएगा कहाँ से मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द कॉफ एंड द स्नीज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, तो हम हर एक को कहते हैं, टीवी पे ऐड आता है, वो बस में छींक रहा होता है और सब कहते हैं रुमाल क्यों नहीं रखते सर, है ना, तो हैंकी रखें। बट दीज आर, ठीक है, हैंकी आपने रखा, हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम हैंकी दे विल बी यूजिंग ओवर। बेटर ये रहेगा डिस्पोजेबल वो नैपकिन। ठीक है, या फिर आप अलग हैंकी रखिए, हैंकी को वापस फोल्ड इस तरह से करिए कि वो जो जिस जगह पे वायरस आए हैं वो अंदर चल जाए। दिस इज नॉट माई हैंकी, दिस इज माई क्या कहते हैं मास्क। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि मैंने अपना ये वाला हिस्सा बाहर रखा है ना, नाक को कवर किया है, तो अब यहाँ पे सब वो वायरस हैं, तो मेरे को क्या करना चाहिए, इसको फोल्ड कर देना चाहिए इस तरह से। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई हैव टू सी स्नीज आई हैव टू यूज अ फ्रेश कार्ड। ठीक है, और ये 2 3 4 सरफेस मिलेगी उसके, उसके बाद देन यू हैव टू सिंपली वॉश इट एंड ड्राई इट इन सन, है ना, या फिर पेपर नैपकिन यूज करें, सिंपली डिस्कार्ड कर दें उनको डस्टबिन में। छींक तो आएगी आएगी, है ना, नाक तो बहेगी बहेगी, तो ये तो सब तुमको करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, देखिए, अब जिसने ये सब कुछ किया है तो उसके हाथ में तो वायरस है, अब उसी हाथ से उसने पेन ले लिया और हम बैंक में गए और मेरा पड़ोसी, मैंने कुछ कुछ भर दिया, उसके बाद मेरे से बोले भाई साहब पेन देना। अब मैं उससे कहूँ यार इसमें वायरस है, तो वो मानेगा थोड़ी, बोले नहीं देना मत दो, 4 बातें सुना करके जाएगा, रख ले भाई, तू भी ले, तेरे को भी होगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे लिखा है, देखिए, पेन से हो सकता है, बुक से हो सकता है, कप से हो सकता है, डोर नॉब। अब जिसने ये बार बार नाक साफ किया है, मुंह साफ किया है, उसी हाथ से वो दरवाजे की नॉब भी पकड़ेगा, है ना, सांकल भी लगाएगा, ताला भी खोलेगा, जो भी करेगा। तो ये सब चीजों पे भी वायरस है। वायरस मरता नहीं है, बॉडी वायरस मरा ही रहता है बॉडी के बाहर। हमने ये बड़े नए नए टर्म्स सुने हैं कि वायरस मर जाता है, वायरस मरा ही रहता है भाई, मरा हुआ क्या मरेगा। तो बॉडी के बाहर तो वायरस मरा हुआ ही है। हम कह सकते हैं कि वो वायरस को हम टोटली खत्म कर सकते हैं, बिकॉज वायरस के ऊपर 2 पार्ट है, आइदर प्रोटीन एंड इनसाइड डीएनए या आरएनए। तो अगर आप उसका प्रोटीन या डीएनए को डैमेज कर देते हैं तो इट विल नॉट बी एक्टिवेटेड अगेन, वो एक्टिव नहीं हो पाएगा। मरा हुआ तो था, पर वो मरे हुए से जिंदा हो जाता है बॉडी के अंदर जाके। ऐसे वाले वायरस जिंदा नहीं होंगे बॉडी के अंदर जाके। लेकिन बॉडी वो जो मेटल सरफेस पे, पेन पे, कॉपी में, बुक में, मोबाइल पे, हाँ, हर जगह पे हमारा वायरस है। जैसे हमने कुछ छींका है वो हाथ से वायरस में आ गया, कई लोगों के पास तो हैंकी नहीं होता, ऐसे किया और छींक, तो दूसरों से तो प्रोटेक्ट कर लिया आपने टाइम बीइंग के लिए। अब आपने हाथ में blunderous amount of virus are there. Now with the same virus you touch mobile, प्रैक्टिकल लैब में गया, आपने उससे माउस पकड़ लिया, ठीक है, किसी से बुक चाहिए, किसी को पेन चाहिए, किसी को कुछ और एपरेटस चाहिए, कुछ भी चाहिए, एवरीवेयर यू आर टचिंग द वायरस। नाउ व्हेनेवर दीज विल टच एंड दे विल टेक इट, वो भी उनके मुंह पे कभी हाथ लगाएंगे तो यार। सो दिस कॉजेज द इन्फेक्शन इन अ हेल्दी पर्सन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज नॉट सिंपली डायरेक्ट इनहेलेशन। ओके, ये तो बहुत लंबा चौड़ा टेढ़ा रास्ता भी है उसका। तो ये हो गया, तो वायरस से होने वाली एक ही बीमारी को यहाँ पे लिखा है, दूसरी बीमारी को हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज एड्स, है ना। और मैंने आपसे कहा था एड्स जो है वो वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड टॉपिक है, और एड्स एक्चुअली reduces our immunity and leading or paving the way for many other diseases to be caused। वो हमारे बॉडी के अंदर कई सारी दूसरी बीमारी के लिए रास्ता खोल देता है। तो वायरस से होने वाली ये बीमारी, वायरस से और कौन कौन सी बीमारी होती है, बहुत सारी बीमारियां होती है वायरस से। देयर आर हेल ऑफ अ लॉट डिजीज आर कॉज्ड बाय वायरस। कौन कौन सी बीमारियां, जरा एक आप में से कोई बता सकता है मुझे कौन कौन सी बीमारियां वायरस से होती है। मैं अच्छा ये काम आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, अब क्या कहते हैं लिखने का, तो आप लिखिएगा, मैं वायरल डिजीज, कॉमन वायरल डिजीज। सबसे पहले तो इन्फ्लुएंजा ही है,
ना, जिसको कोल्ड कॉफ, हम इंडिया में तो इसको वायरल ही बोलने लग गए हैं। वी स्टार्टेड कॉलिंग इट द वायरल ओनली। ये क्या हो गया, अरे सब वायरल हो गया, अरे वायरल क्या हो गया, वायरस इज ए कैटेगरी ऑफ पैथोजन, उससे तो कई सारी बीमारियां होती है। खैर कोई बात नहीं, हमने समझ लिया ना, मैंने बोला मैंने समझ लिया, हो गई बात खत्म। क्योंकि लैंग्वेज इज नथिंग बट इट इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सो इफ आई एम कम्युनिकेटिंग, इफ अदर इज अंडरस्टैंडिंग, दैट मीन्स द थिंग इज डन। तो इन्फ्लुएंजा हो गया। इन्फ्लुएंजा के अलावा क्या हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस, हेपेटाइटिस, देन क्या कहते हैं, स्मॉल पॉक्स खत्म हो गई दुनिया से, चिकन पॉक्स, मीजल्स, एड्स, और और ये रहा हमारा कोरोना। कोरोना नहीं लिखेंगे, कोविड लिखेंगे, कोविड-19। ठीक है। और बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि इससे होती हैं। हेपेटाइटिस बी, ये हेपेटाइटिस ऊपर वाला हेपेटाइटिस, ऊपर वाले हेपेटाइटिस को हम सिंपली जॉन्डिस कह देते हैं। ये वाला हेपेटाइटिस थोड़ा उसी का मॉडिफाइड वर्जन है, बट डेंजरस है। ये एक बार होने के बाद कभी ठीक नहीं होता। ठीक है। रिप्रोडक्टिव डिजीज के अंदर हमने वार्ड्स भी पढ़े हैं, है ना, जेनाइटल वार्ड्स, जेनाइटल वार्ड्स, WARDS। तो ऐसे कई सारी बीमारियां हैं। हाय, जेंटली बना रहा है। तो हमने पढ़ा कि कई सारी बीमारियां जो वायरस से होती हैं, और ये सारी बीमारियां जो होती हैं उनमें दे आर गॉट देयर फिक्स कोर्स ऑफ टाइम। नो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, कोई इलाज नहीं है इनका। ये आएंगी, 13-14 दिन रहेंगी बॉडी के अंदर, फिर चली जाएंगी, है ना। लेकिन एड्स नहीं जा रही है। कोविड भी हम जान रहे हैं, जो सिंपल कोविड था पिछली बार वाला, ये तो अभी नया वाला आ गया, म्यूटेंट वेराइटी। पहले वाला कोविड था वो 14 दिन के अंदर जा रहा था। हम क्या कह रहे थे, ऐसे लोग जिनको कोरोना हो रहा था, किसी को हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है, तो आप घर पे रहें, आइसोलेट कर लें अपने आप को, एंड टेक विटामिन सी, विटामिन डी, एंड जिंक टैबलेट, एंड क्या कहते हैं, अच्छी डाइट ले लें, और प्रोटीन का सोर्स बढ़ा लें। यही कह रहे थे हम। अब उससे काम नहीं चल रहा है, क्योंकि अब वाला जो वायरस आया वो लंग्स को अफेक्ट कर रहा है। पहले वाले लंग्स को नहीं अफेक्ट कर रहा था, केवल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कर रहा था। तो दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है। तो अब जो आए हैं वो वायरस, वो थोड़े ज्यादा डेंजरस हो गए, क्योंकि वो लंग्स को अफेक्ट कर रहे हैं। दे आर दे आर डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स, सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स। इतना बड़ा टाल हो आपके पास, इतना बड़ा टाल है मेरे पास, हाँ, अच्छा सरफेस एरिया है। ये मेरे हाथ वॉश बेसिन का टाल है। मुंह धोने के बाद, हाथ धोने के बाद मैं आराम से पहुंच सकता हूँ, एंड इट विल कंप्लीटली वॉश, मतलब वाइप मी, है ना। और मान लो इसके बीच में इतने एरिया के अंदर एक बड़ा सा कट लग जाए, खत्म हो गया ये एरिया है ही नहीं इसके अंदर। या मैं कहता हूँ कि अब वो इतना सा रह गया, द सरफेस एरिया इज डिक्रीज टू हाफ। विल इट बी सो इफेक्टिव जितना पहले था? नहीं रहेगा ना। द सेम वे द नंबर ऑफ alveoli which was affected by these, maybe pneumonia, maybe कॉमन कोल्ड, और क्योंकि निमोनिया तो एल्विलाई के अंदर जा रहा था, ये तो नहीं जा रहा है। और लेकिन वो जो कोरोना, तो कोरोना जो है वो अगर हमारे एल्विलाई का सरफेस एरिया डिक्रीज कर देंगे, तो फिर इससे क्या होगा, दैट ऑक्सीजन इनटेक विल डिक्रीज। और उस पे भी मैंने आपसे पहले भी कहा कि ऑक्सीजन इनटेक तो हमारा वैसे एल्विलाई कम हो गया तो वैसे ही कम होना है। ऑन टॉप ऑफ दैट वी पीपल आर नॉट प्रॉपर हीमोग्लोबिन। हमारे खून के अंदर हीमोग्लोबिन, अगर हम हर आदमी का हर एक क्लास के अंदर जाकर के अगर HB चेक कराएं, हीमोग्लोबिन लेवल चेक कराएं, तो बच्चों का हीमोग्लोबिन 8 से लेकर के और 12-13 बस, इससे ज्यादा नोबडी विल हैव परफेक्ट 15, है ना। और फीमेल्स के अंदर इट इज ऑल द मोर लेस। तो ये एक डेंजरस सिचुएशन है। तो पहले ही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी कम हो रहा है, हीमोग्लोबिन और एक्सचेंज भी कम हो रहा है, तो इससे क्या होगा, सिचुएशन इज वेरी बैड। तो हम जो देख रहे हैं अस्पताल में जाकर के, जिनको ऑक्सीजन 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 कर रहे हैं, नॉट ऑल द रीजन इज कोरोना। कोरोना ने केवल आपका लंग्स खराब करा है,
बट ऑक्सीजन, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो हमको हीमोग्लोबिन चाहिए वो हीमोग्लोबिन भी कम है, ऑक्सीजन जो है आरबीसी जो है आरबीसी के नंबर भी कम है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज आल्सो डिक्रीज। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि वो करेला और नीम चढ़ा वाली सिचुएशन हो गई। पहले कोरोना और पहले क्या कहते हैं लो हीमोग्लोबिन काउंट, और उसके एंड अगर उसमें से भी कोई आदमी पहाड़ पे चल जाए है ना, तो वहाँ ऑक्सीजन वैसे ही कम होती है हवा में। तो इसीलिए हम क्या कर रहे होते हैं, वी आर गिविंग द हायर ऑक्सीजन, सिलेंडर से ऑक्सीजन ज्यादा दे रहे हैं। तो ज्यादा ऑक्सीजन क्या रहेगा, जब हम जानते हैं ये सारा पार्शियल प्रेशर का गेम होता है, ज्यादा ऑक्सीजन इस साइड में रहेगा तो उस साइड में भी एल्विलाई की दूसरी साइड में भी ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो द ऑक्सीजन रिचनेस विल और कंसंट्रेशन विल इंक्रीज, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल इंक्रीज। दो एल्विलाई आर लेस तो सरफेस एरिया कम है, लेकिन कम सरफेस एरिया से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर भेज रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हीमोग्लोबिन जो है उसको सैचुरेट हो जाए और उसको ले जाकर के पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एनीवे इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन हियर, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कि क्या कुछ होता है। चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिजीज। तो यहाँ आप ये जैसे मैंने ये लिखे हैं निमोनिया के लिए, वैसे आप यहाँ पे कॉमन कोल्ड के लिए भी लिख लीजिए। आई आई डोंट थिंक आई शुड वेस्ट टाइम फॉर दैट, ठीक है। और लिख करके मेरे को भेजना भी, तो मालूम पड़ता है देखे कौन कौन मेहनत करता है। प्रिपेयर अ चार्ट and send it to me on my WhatsApp now. Let me see, are you really doing or सिर्फ मेरे बोलना पड़ता है। किसी को कुछ कहना है? ओके, टू प्रोटोजोअल डिजीजेस के बारे में हमको पढ़ना है। दो 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 एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं ना, और एक का बैक्टीरियल डिजीज के दो एग्जाम्पल पढ़ लिए, वायरल डिजीज का एक पढ़ लिया, एक आगे पढ़ लेंगे एड्स। अब प्रोटोजोअल डिजीज दो एग्जाम्पल, वन इज मलेरिया एंड वन इज एंटमीबा या अमीबियासिस। तो मलेरिया को काफी डिटेल में डिस्क्राइब किया, पूरा लाइफ साइकिल समझा है। मलेरिया को इतना डिटेल में क्यों बताया, बिकॉज ये घर घर की कहानी है, ठीक है। प्रैक्टिकली एवरी हाउस समबडी और अदर हैड सफर्ड फ्रॉम मलेरिया इन सम टाइम और अदर। इस साल नहीं तो पिछले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, ये घर घर की कहानी है। हर घर के अंदर किसी न किसी को मलेरिया हुआ होगा। तो ये मलेरिया का वर्ड का मतलब क्या होता है, मैल एरिया। मैल का मतलब क्या होता है, बैड। एरिया का मतलब होता है एयर। द नेम इज कम फ्रॉम द मैल एयर, दैट इज खराब हवा, प्रदूषित हवा। ऐसा माना गया है कि मलेरिया इज एक्चुअली कॉज्ड बाय कॉन्टामिनेटेड एयर या फॉल्स क्या कहते हैं बैड एयर, बट देयर वाज नथिंग ट्रू इन दिस। एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट तो कहते हैं मेडिकल ऑफिसर थे, इंग्लिश मेडिकल ऑफिसर, जब भारत में अंग्रेज चल रहे थे तब की बात है। तो वहां पे उनकी आर्मी के अंदर एक डॉक्टर थे, उन डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, ठीक है, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। डॉक्टर रोनाल्ड रॉस वाज एक्चुअली अ ब्रिटिश ओरिजिन बट इंडियन आर्मी ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर। तो वो इंडिया में काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि आर्मी में कई सारे लोगों को मलेरिया हो जाता है, एक बार अगर होता है तो नंबर ऑफ पीपल, वन आफ्टर अदर number of people suffer from this. So he thought, or rather people in the olden time they used to think it is because of the bad air. बट फिर जब इन्होंने स्टडी करा तो इन्होंने पहली बार पाया कि इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द एयर, इट इज बिकॉज ऑफ द मस्किटो बाइट, ठीक है। और इन्होंने जो है उसको बताया कि ये एक्चुअली एक खास तरह का प्लाज्मोडियम होता है विच इज फाउंड इन द ब्लड, है ना। और उन्होंने उसका टेस्ट करने का तरीका बनाया, स्लाइड व्लाइड। द टर्म The term malaria says that malaria, that is dirty air or bad air or false air. तो ये dirty air या bad air से नाम आया उसका, हालांकि later on it was found that it is nothing to do with the bad air, it is because of the mosquitoes. So mosquitoes क्या है, mosquitoes are only vectors, they are only transporting the disease causing pathogens are actually plasmodium, they are transporting the pathogen from one body to another, infected person to a healthy person, ठीक है। तो ये एक तरह के वेक्टर्स हैं, दे आर द ट्रांसपोर्टर्स। ओके, नाउ देयर आर 3 कॉमन टाइप ऑफ मलेरिया व्हिच आर फाउंड इन आवर कंट्री, दे आर प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी
एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। और इसके अंदर जो है सबसे कॉमन है प्लाज्मोडियम मलेरिया, और सबसे खतरनाक है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, तो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द प्लाज्मोडियम, जिनके नाम यहाँ पे दे रखे हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया। तो वो मलेरिया वाइवक्स हो सकता है, मलेरिया मलेरिया नॉर्मल मलेरिया है, या मलेरिया फैल्सीपेरम हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इज द मोस्ट सीरियस वन एंड इवन फेटल। और एक बात और लिखी है, इंडिया में जितनी डेथ एक्सीडेंट से नहीं होती है, उससे ज्यादा डेथ जो है वो केवल मलेरिया से हो जाती है। तो मलेरिया इज स्टिल बिग प्रॉब्लम एंड वी हैव सो फार नॉट एबल टू मेक वैक्सीन फॉर मलेरिया। क्यों नहीं बना पाए उसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, व्हेन वी विल स्टडी द मोड ऑफ एक्शन ऑफ अ वैक्सीन। ठीक है, तो हमको मालूम पड़ेगा कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू मेक वैक्सीन फॉर मलेरिया। आगे देखते हैं, लेट अस टेक ए ग्लांस ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। फिगर 8.1, चलो आ जाओ, फिगर 8.1 ये है। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं तो पूरा पेज में आ जाएगा। रिड्यूस द साइज। ओके, तो यहां से शुरू है। देखिए यहाँ आया एक मस्किटो, ये बैठा हुआ है, कौन सा वाला? एनाफिलिस। कौन सा वाला? फीमेल। फीमेल एनाफिलिस इज नॉट अ पैरासाइट, वो पैरासाइट नहीं है। फीमेल एनाफिलिस को केवल अपने बच्चे पालने के लिए हमारे आरबीसी की जरूरत पड़ती है, नॉट फीमेल एनाफिलिस हरसेल्फ। फीमेल एनाफिलिस को खुद को जीने के लिए हमारे ब्लड की जरूरत नहीं है, उसको उसके बच्चे पालने के लिए हमारे आरबीसी की जरूरत है। ठीक है, जैसे हमने पढ़े थे पहले कि वो फिग है, फिग के अंदर रहने वाले कुछ मोथ होते हैं, कुछ मोथ, सम मोथ गोज एंड डिपॉजिट देयर एग्स इन द फिग। ठीक है, तो उसको हमने कहा था ओवी पोजिशनिंग। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन है कि उनके अंडे जो है वो इन आरबीसी के अंदर पलते हैं, तो दैट इज व्हाई दे रिक्वायर आरबीसी। तो चलिए, ये एक फीमेल एनाफिलिस है विच इज ऑलरेडी बीन इन्फेक्टेड। तो फीमेल एनाफिलिस के अंदर मलेरिया का पैरासाइट फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजाइट। स्पोरोजाइट इज अ स्पोर फॉर प्लाज्मोडियम। तो वो जो स्पोरोजाइट है वो कहाँ पे मिल रहा है? वो इसकी सलाइवरी ग्लैंड में मिल रहा है। मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में वो मिल रहा है ना। सलाइवरी ग्लैंड में मिलने पे क्या होगा? जब मच्छर हमको काटेगा ब्लड सक करने के लिए, ताकि वो अपने अंडे को पाल सके। तो फीमेल एनाफिलिस कम्स, सिट्स ऑन आवर बॉडी, इंसर्टेड दैट, उसको क्या कहते हैं, प्रोबोसिस। वहां पे कहीं प्रोबोसिस वो एंटर कर देगा, है ना। फिर क्या होता है, हमारे ब्लड में एक फैक्टर होता है, उसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कहीं इसके, वो ब्लड जब निकल रहा है तो वो उसकी प्रोबोसिस में जम नहीं जाए, क्लॉट नहीं हो जाए, उसके लिए क्या, उसको एंटी क्लॉटिंग सब्सटेंस डालना पड़ेगा। तो दैट इज प्रेजेंट इन इट्स सलाइवा। तो मस्कीटो क्या करता है, अपने सलाइवा से पहले एंटी क्लॉटिंग हेपेरिन जो है उसको हमारी बॉडी में डाल रहा है। तो जब when mosquito is putting that anti-clotting factor, at the same time sporogyte will also enter in our body। देखो मतलब क्या क्या तरीका ढूंढा है। हाउ दिस स्पोरोजाइट मस्ट कम टू नो कि वो मलेरिया जो है ने मस्कीटो जो है वो उसकी सलाइवा हमारी बॉडी के अंदर डालेगा, है ना। उसको क्या मालूम होगा, और उसको क्या तरीका पता होगा कि वो जब सलाइवा डाल रहा होगा तो वी विल ऑल्सो क्या कहते हैं, द स्पोरोजाइट विल ऑल्सो एंटर इन इट। फिर भी लोग बाग कहते हैं कि भगवान नहीं है, सब अपने आप से हो गया। पता नहीं, भगवान है, कोई और है, कुछ तो होगा यार, ये सारी चीजें अपने आप से कैसे होती है। सॉरी बच्चे, कंफर्टेबल। तो वो स्पोरोजाइट्स जो है वो अलोंग विद द सलाइवा, अलोंग विद द सलाइवा ऑफ मस्किटो, दिस स्पोरोजाइट लार्वा जो है जो क्या कहते हैं स्पोर्स हैं, दे एंटर्स इन द बॉडी ऑफ अ पर्सन, हेल्दी पर्सन। वंस इट इन्फेक्ट, वंस द स्पोरोजाइट एंटर, वो ब्लड से सीधे कहाँ पहुंचेंगे? इनटू द लिवर। तो देखिए, द पैरासाइट दैट इज स्पोरोजाइट रीच टू द लिवर थ्रू ब्लड। अब दे विल मल्टीप्लाई दे। उसके बाद क्या हुआ देखिए, द पैरासाइट
द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस asexually इन द लिवर, है ना, बस्टिंग द सेल्स और रिलीजिंग इनटू द ब्लड। ठीक है, अब वो स्पोरोजाइट जो था वो asexually प्रोड्यूस करा है, asexually, एंड उसके बाद क्या बनाएंगे वो काफी सारे जो है मतलब बस्ट करके और काफी सारी सेल्स जो है वो रिलीज कर देंगे इनटू आरबीसी, एंड देन दे विल बी गोइंग टू आरबीसी। आरबीसी में क्या है, दे आर फर्दर मल्टीप्लाइंग। देखिए, पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस asexually in RBC red blood cells, busting the red blood cells and releasing this and causing the cycles of fever। ठीक है, आपने देखा मलेरिया में चिल्स होते हैं एवरी ऑल्टरनेट डे और एवरी आफ्टर एवरी सेकेंड डे, जो भी है वो डिपेंड करता है विच टाइप ऑफ मलेरिया इज। तो वो जो सेल्स गए हैं आरबीसी के अंदर, वो एक टाइम लगाती है, मे बी 24 आवर्स, मे बी 48 आवर्स, मे बी 72 आवर्स, वॉट एवर इट द टाइम। एंड उसके बाद क्या होगा, पूरी बॉडी में एक साथ ही तो आए थे स्पोरोजाइट, मस्कीटो ने आज छोड़ा है तो आज ही आया, उसके बाद लीवर में गए मल्टीप्लाई हुए तो मल्टीप्लाई होने में सेम टाइम लगा, then they enter into the RBC also they are multiplying, so they are multiplying in the same time. So when 48 hours, after 24 hours or 48 hours, when they will mature, all the RBC will जो है they burst at the same time। and जब RBC burst हो रहे हैं and these sporozoites which are on the cells, तो इसके साथ में कुछ वेस्ट भी बनेंगे, उस वेस्ट को हम कहते हैं हीमोजाइन। ठीक है, दैट वेस्ट विल आल्सो कम आउट इन द ब्लड, तो द वेस्ट इज एक्चुअली कॉजिंग चिल्स, उसी के कारण उनको फीवर हो रहा है। Now, in what ways malaria is dangerous to us? It is causing damage to our liver cells. It is decreasing our number of RBCs. RBC के नंबर तेजी से कम करेगा। So when RBC number decreases, what happens? Our oxygen carrying capacity will decrease. ठीक है, so it will lead to the weakness, है ना। और जो फीवर आ रहे हैं, चिल्स आ रहे हैं, वो किस कारण आ रहे हैं, वो हमने पढ़ा कि वो जब हीमोजाइन रिलीज होगा तो हमको फीवर भी आएंगे, हमको ठंड भी लगेगी, एंड इन सीवियर केसेस दे मे कॉज डेथ। लिवर खराब, आरबीसी कम, तो नेचुरली इट विल लीड टू डेथ। सो अब देखिए ये क्या हुआ उसके बाद, ये सारे कई बार तो वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते रहेंगे एंड देयर नंबर विल इंक्रीज टू ए ग्रेट नंबर। देन क्या होगा, सेक्सुअल स्टेज, द गैमेटोसाइट डेवलप इन द रेड ब्लड सेल्स and they will two type of gametes will form, कुछ आरबीसी, कुछ ये प्लाज्मोडियम जो होंगे they will become male, some will become female। now they are ready to dispose at this time, क्योंकि एक बार मेल एंड फीमेल गैमेट बनने के बाद ये अब दोबारा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सो दिस विल बी द एंड ऑफ द मलेरिया ओवर देयर। ठीक है उसके बाद चिलविल नहीं होने वाला। तो अब ये जो मेल एंड फीमेल गैमेट बन गए, दे आर रेडी टू डिस्पोज, इनको आपने तैयार कर लिया है, पैक करके रख दिया है, अब हम इंतजार कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, मस्कीटो के आने का। अब दोबारा मस्कीटो आए और उसको काटे, तो दिस टाइम इट विल बी द रिवर्स प्रोसेस। पिछली बार क्या है, द सलाइवा के थ्रू वो अंदर गए थे स्पोरोजाइट, दिस टाइम विद द ब्लड द मेल एंड फीमेल गैमेट्स विल एंटर इन द बॉडी। with the blood suck, as they will sucking the blood, these gametes will enter into the gametocyte will enter into the body of mosquito. So in human body it is only the asexual cycle, and asexual cycles are fast. The number of time asexual cycles will be repeated in human body. Once the male and female gametocytes are formed, these gametocytes will enter into the body of mosquito, and now in mosquitoes जो है these gametocyte will enter, and the further cycle will take place in mosquito, female anopheles। तो ये आ गए, female mosquito take the gametocytes with their blood meal। ठीक है, अब ये यहाँ पे आने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा इन देयर बॉडी। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन मस्किटोस इंटेस्टाइन। आप बताना होगा फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, इंटेस्टाइन में। सलाइवा कहाँ बन रहा है, स्पोरोजाइट कहाँ पहुंच गया है, सलाइवा में। ट्रांसफर कैसे हुआ है, सलाइवा के थ्रू। ठीक है, फीवर क्यों हो रहा है, हीमोजाइन के कारण। कितने टाइम में होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो साथ साथ में सारे सेल्स टूटते हैं और वो
पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज करते हैं। तो ये सारी चीजें आपने मेरी बातों पर ध्यान दिया होगा शायद, जैसे जैसे मैं बोलता गया। तो फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इन द इंटेस्टाइन, एंड वंस द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, उसके बाद दे विल प्रोड्यूस स्पोर्स, and the spores are sporozoites, and the sporozoites are transferred into the salivary gland. तो ये देखिए, the mature infective stage sporozoites escape from the intestine and migrate into the mosquito's salivary gland, and now they are ready to enter into another human. So mosquito is actually a carrier, as well as it is the organism in which the sexual cycle completes. For mosquito is not a parasite, क्योंकि पैरासाइट होता तो मेल और फीमेल दोनों ही होते भाई, व्हाई ओनली फीमेल, व्हाई मेल मस्किटो इज नॉट सकिंग ब्लड? तो फीमेल मस्किटो इज सकिंग ब्लड नॉट फॉर इट्स बॉडी, मतलब टू गेट द न्यूट्रिएंट, बट इट इज एक्चुअली फॉर रेयरिंग इट्स एग्स, ठीक है? तो वो उसके लिए चाहिए, स्पोरोजाइट्स के लिए, है ना, स्पोरोजाइट्स के आगे चलाने के लिए। तो अब उसके लिए, सॉरी नॉट स्पोरोजाइट, ये सेक्सुअल साइकिल के लिए। अब ये स्पोरोजाइट यहाँ से हमारी बॉडी में एंटर हुआ, पहले गया लीवर में, लीवर से फिर वो फट करके आरबीसी के अंदर, आरबीसी से जब जब वो फट के अपनी साइकिल पूरी करेंगे, एज मेनी टाइम विल गेट द चिल एंड फीवर, है ना। एंड अगर ये ज्यादा ही बार हो जाएगा, कई बार रिपीट होगा, तो सो मच ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस विल बी देयर एंड सो मेनी आरबीसी विल बी डैमेज, and the damage of the RBC will not be fully replaced, then it will lead to the severeness, है ना। And then after a certain number of division, then they produce male and female gametocyte. Once the male and female gametocyte is produced, no more chill will come. उसके बाद तो अब इसके नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, सो अब आगे और फीवर वीवर नहीं आ रहा। अब मस्किटो वेट, मतलब हमारे बॉडी वेट कर रहा है मस्किटो आए तो ये मेल फीमेल गैमेट को उनको दे दें और अपने से पंगा छुड़ाए। Now if we have to control mosquito malaria, we will have to do one of the two, या तो हमको ह्यूमन को हटाना पड़ेगा रास्ते से, या हमको मस्किटोज को हटाने पड़ेगा, क्योंकि इसके दो पैरासाइट है ना। ये सेकेंडरी पैरासाइट है इसका कौन? मस्किटो। प्राइमरी है हम, तो हमारी भी उसको जरूरत है और मस्किटो की भी जरूरत है प्लाज्मोडियम को अपनी साइकिल पूरा करने के लिए। फॉर प्लाज्मोडियम देयर आर टू पैरासाइट्स, ठीक है, सॉरी टू होस्ट। एक होस्ट उसका कौन हो गया? ह्यूमन। दूसरा कौन हो गया? मस्किटो, ठीक है। तो ये अगर हम चाहते हैं कि मलेरिया को कंट्रोल करें तो हमको या तो ह्यूमन को हटाना पड़ेगा या मच्छरों को। ह्यूमन को हटा देंगे तो फिर किसको किसको फायदा दे रहे हैं? तो हमको क्या करना है? मस्किटोज को। एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू चेक द ग्रोथ ऑफ द मस्किटोज। तो हमको सबसे पहला काम यही करना, मस्किटो मारना। अब मस्किटो मारना है, अगर मलेरिया कंट्रोल करना है तो व्हाट वी हैव टू डू, व्हिच इज रिटन हियर, है ना, कि हमको उसको खत्म करना है, मलेरिया को कम करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? मलेरिया मस्किटोज के नंबर कम करेंगे। मस्किटोज के नंबर कैसे कम करेंगे वो हमको पता है। आई थिंक इट इज रिटन समवेयर हियर, पढ़ देते हैं। लेट अस टेक अ ग्लांस इन द दिस थिंग 8.5, ठीक है। प्लाज्मोडियम एंटर्स इन द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजाइट। किस फॉर्म में एंटर कर रहा है? स्पोरोजाइट, व्हिच इज अ स्पोर्स इन फैक्ट, ठीक है, इन्फेक्टेड फॉर्म, थ्रू व्हिच द बाइट ऑफ द मस्किटो, through the bite of female Anopheles mosquito, the parasite initially multiply within the liver। कहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं? within liver cell। तो 2-3-4 बार मान लीजिए उसने वहां कर लिया, उसके बाद देन दे अटैक आरबीसी। उसके बाद कहाँ जाएंगे? देन अटैक आरबीसी। बाकी साइकिल वो कहाँ पे कंप्लीट कर रहा है? आरबीसी में, रिजल्टिंग द रप्चर। तो डैमेज हो गया, आरबीसी किसी काम की भी नहीं रही। ऊपर से उन्होंने जो है हिमोजाइन वो सब्सटेंस निकाला जो फीवर करेगा। तो द रप्चर ऑफ आरबीसी एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इज हिमोजाइन, ठीक है। नाउ व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चिल? तो चिल किसके कारण आ रहा है? हिमोजाइन के कारण। एंड फीवर भी इसी के कारण है, हाई फीवर, ठीक है। अब फीवर इज नॉट ए गुड थिंग। कभी भी बॉडी के अंदर फीवर होगा तो वो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को अफेक्ट करता है, वो हमारे एंजाइम को खराब करता है। इसलिए वी हैव टू कीप द बॉडी टेम्परेचर अंडर कंट्रोल एवरी 3 to 4 days, डिपेंड करता है विच टाइप ऑफ मलेरिया ना। व्हेन फीमेल एनाफिलिस मस्किटो bites infected person, these parasite enters into the mosquito's body and undergo further development। अब ये सेक्सुअल साइकिल कहाँ कंप्लीट होनी है? फीमेल मस्किटो के अंदर। तो तब तक हमारे उसमें गैमेटोसाइट बन गया है, मेल गैमेटोसाइट एंड फीमेल गैमेटोसाइट, है ना, एग्स एंड स्पर्म के फॉर्म में जो भी आप ले लीजिए। ये वहां जाके फर्दर सेक्सुअल साइकिल होना है तो मस्किटो के अंदर जाना पड़ेगा। So they will not be able to complete their sexual cycle, then they will not be able to make sporozoite, then they will not be able to spread from one person to another, ठीक है।
तो यही है, एक ही तरीका है मस्किटो को कंट्रोल करने का, मतलब मलेरिया को कंट्रोल करने का, मस्किटो को हटा दो। द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन द देन टू फॉर्म स्पोरोजाइट एंड स्टोर इन द सलाइवरी ग्लैंड। These mosquitoes bite human, वापस से वो ट्रांसफर करेंगे। The sporozoites are introduced in his body or her body again, ठीक है, thereby initiating। तो मस्किटोज कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके हैं वो आपको पता है, यहाँ पे तो लिखा हुआ नहीं है, कहीं तो देखा था मैंने शायद, मे बी इन 9th क्लास। तो मस्किटो को कंट्रोल करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, ब्रीडिंग ग्राउंड उनके स्टैग्नेंट वाटर उनको रोकना है, कहीं पे भी घर के आसपास जो है रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए। रुका हुआ पानी कहाँ होता है, मे बी इन ओपन टैंक्स, मे बी ड्रेन, मतलब ऐसा ड्रेनेज जहाँ पानी भरा हुआ है ना, जहाँ स्टैग्नेंट वाटर होता है, बारिश का पानी रुक जाता है खाली प्लॉट्स में। इसके अलावा कई बार वाटर टैंक में ढक्कन नहीं होता है, बंदर ले गए तो वहाँ पे पानी, वहाँ मच्छर चल जाएंगे, वहाँ पे अंडे देंगे, है ना। कई बार पुराने टायर्स और कुछ मटके या कुछ दूसरी चीजें, कूलर वूलर जो अभी हम निकाल देंगे बारिश में, ऊपर रख देंगे छत में, बारिश का पानी चल जाएगा। तो दीज आर द प्लेसेस, तो ये इनको हटाना है ना। दूसरी बात क्या है, मच्छर घर में आ रहे हैं तो कहाँ से उसको वो हटाना है, तो मैश लगाइए, वायर मैश, ठीक है, ताकि मच्छर नहीं आए अंदर। और मस्किटो रिपेलेंट यूज करिए, कभी कभार वंस इन मिनट वगैरह स्प्रे कर दीजिए। और गम्बूशिया इज अ नाइस फिश विच ईट्स अवे देयर लार्वा एंड विच वेरी इको फ्रेंडली मेथड हो गया, बिना किसी केमिकल मेथड के हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एक और डिजीज पढ़ लेते हैं, छोटा सा है, उसके बाद एस्केरियसिस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मंडे को। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, ये प्रैक्टिकल में भी है, ठीक है। इज अ प्रोटोजोन पैरासाइट एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ रहता है साहब ये, लार्ज इंटेस्टाइन में। वो कहाँ रह रहा था मलेरिया का, लिवर और आरबीसी में। ये मिल रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन इधर सीधा चलो of human which causes amoebiasis, that is amoebic dysentery। large intestine का काम क्या होता है, to reabsorb water from the fecal matter। तो लार्ज इंटेस्टाइन में ये उसको करने ही नहीं देंगे, so क्या होगा, lot of water go out फूड में से, and every now and then person will go for washroom, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसको वाटरी डिस्चार्ज होंगे। तो यहाँ पे लिखा है देखिए, amoebic amoebiasis, that is amoebic dysentery। symptom of this disease include constipation या abdominal pain, cramps, stool with excess of mucus and blood cell। And the houseflies act as a mechanical carrier, mechanical carrier। Now इसको हम mechanical vector कहेंगे। mechanical vector कौन से होते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। mechanical vector कौन से होते हैं, जो खुद ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, है ना, which are not introducing। mechanical vectors does not transfer the pathogen into the body but transfer it to the food or water from where we only take them into the body। एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए इसके, एग्जाम्पल आर हाउस फ्लाई और कॉकरोच और चूहे का, पिस्सू वाला लेकर के आता है चूहा, तो रैट्स, ठीक है। तो ये मैकेनिकल है ना। तो देखिए आंसर क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे बन जाते हैं, मैकेनिकल वेक्टर पे भी क्वेश्चन बन गया। एंड सीवियर सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम द फीसिस, है ना, फीकल मैटर जो ओपन में डिस्चार्ज करते हैं। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो है एक बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने कहा कि भाई कोई खुले में शौच नहीं जाएगा, ठीक है। तो खुले में शौच नहीं जाएगा तो क्या होगा, फीकल मैटर विल नॉट बी देयर and the disease causing pathogens will not be transferred from infected person to the one body to another, ठीक है। तो ये हो गया सीवर ट्रांसमीटर, serve to transmit the parasite from the feces to the infected person of food or food product, thereby contaminating them। Drinking water and the food contaminated by the fecal matter are the main source of the infection, ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। एस्केरिस से हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मंडे को, कल की छुट्टी है, कल संडे है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ 3 चैप्टर के टेस्ट बचे हैं। बच्चे टाइम के हिसाब से मुझे बता दें कब टेस्ट लेना है।
3 चैप्टर हो गए हैं, 3rd, 4th एंड 5th। 3rd चैप्टर का कब लेना है टेस्ट? जवाब नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे। तब तक ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। बीच में बोलो ना। थर्सडे को। थर्सडे को, ठीक है, डन। तो आपको सबको विदित हो, 3rd चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन टेस्ट विल बी ऑन थर्सडे। डन। सर एमसीक्यू? नहीं नहीं, दोनों लेंगे, एमसीक्यू नहीं, डिटेल में लेंगे। ठीक है, ओके, गुड डे चिल्ड्रन। ओके।